रिसेंटली उसमें अभी देखा गया है कि ईशा अंबानी ने ट्विंस कंसीव किया है थ्रू आईवीएफ। तो क्या ये सच है मैम कि आईवीएफ के थ्रू सिर्फ ट्विंस ही होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी एक आईवीएफ प्रेगनेंसी के लिए जा रहे हैं या जो एक आईवीएफ ट्रीटमेंट करा रहे हैं, हर किसी को ट्विन प्रेगनेंसी नहीं होती। आईवीएफ किन पेशेंट्स को रिकमेंड किया जाता है? आईवीएफ हर पेशेंट के लिए नहीं है। So doctor, many people believe that undergoing IVF affect the health of both, like mother and the baby. Is that true? No, it does not. But like you said, it's a biggest myth. So what other kind of treatment is provided by Krista IVF for infertility patients? Yeah. So as I discussed, IVF is not the only treatment that is provided to every patient. यूँ तो आपने ढेर सारे पॉडकास्ट देखे ही होंगे, बट एक कॉमन टॉपिक है जिसके बारे में शायद कोई बात नहीं करना चाहता, दैट इज इनफर्टिलिटी. So almost 15 to 20 million couples are infertile in India and the data goes up to 60 to 80 million worldwide. फिर भी कोई बात नहीं करना चाहता. क्यों? आखिर क्यों लोग इनफर्टिलिटी और आईवीएफ जैसे टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते? Hello, I'm your host Nisha Saini. Today we are going to talk about a topic that is personal yet impactful, infertility. क्या आईवीएफ कराने से कोई प्रॉब्लम होती है? क्या आईवीएफ ही इनफर्टिलिटी का इलाज है? और इनफर्टिलिटी से कैसे बच सकते हैं? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आज वर्ल्ड आईवीएफ डे के दिन हम जानेंगे हमारे आईवीएफ एक्सपर्ट के साथ. Hello everyone, I'm your host Nisha Saini. Today we have a Dr. Aarti with us, a renowned fertility specialist at Krista IVF, who's here to debunk our myths related to IVF and infertility. She will tell us about the fact and give us her insight on IVF. Thank you, Nisha, for having me. So, doctor, many people believe that undergoing IVF affect the health of both, like mother and the baby. Is that true? And does IVF impact the health by any chance? No, it does not. But like you said, it's a biggest myth. They generally feel the first question, even in fact, the couple asks us, will the baby be healthy? Will the baby be normal? That is the first question. So let me just discuss about the couple's health. I would say mostly mother, because for women we give around 10 days of injections, and after that there is a very small daycare procedure. Nowadays most of these injections and procedures, they are not painful, and this doesn't harm. It doesn't cause any long-term side effects or no harm. So we can be assured on that. Okay. And next comes the baby. In fact, I would say through these IVF procedures nowadays, if there is any history of genetic disorders or something, we can identify an embryo that is healthy through pre-implantation genetic diagnosis, and a healthy baby can be implanted rather. That is the truth. And when it comes to the baby, it's going to be like any other normal baby. Like if a baby is born through natural conception, IVF baby is also the same. Because in over these years, there are conceptions that has happened through IVF, and these children, they are big now and they have conceived normally. So this is a myth. Okay. So doctor, someone is facing the infertility issue. So why should they book an appointment with Krista IVF? See, all the infertility issues, it's not only the doctor or one person. This is a big teamwork. This big team consists of doctor, that's the specialist, embryologist, and then the supporting staff nurse, psychological counselor, managers, and pharmacy. So this is a big teamwork. For any patient to choose an IVF center, they should experience, see, once they visit the center, like I told even previously, I elaborated on this. A specialist sees the patient, they get the proper history to arrive at a diagnosis, what procedure has to be done, and then they are supported by the psychological counselors, like or be explaining, like what are the other steps involved. And the main thing is the financial counseling, the transparency in all that, without the hidden cost. And stay here with Krista, I would say this is all there. And additional to that, we have a full-time embryologist, in-house embryologist. We have the state-of-art lab with us that is one of a kind. And then we have other things associated with best of best, the latest equipments, and the techniques are also followed here. So for any patient to choose any IVF center,
that has to be like Krista. Like, Yeah. you know, this is the place where, you know, you get everything under one roof. Yes, In yes, a proper way with good counseling. Yeah. Yeah. So, what other kind of treatment is provided by Krista IVF for infertility patients? Yeah. So as I discussed, IVF is not the only treatment that is provided to every patient. We start with simple ovulation inductions, IUI, IVF. Even when you come to IVF, we offer procedures like ICSI, that is intracytoplasmic sperm injection. There are other techniques wherein we can separate the good sperm, like, you know, the sperm sort of pixie dish, they are available. And then blastocyst culture is available here, laser hatching. Even we can take biopsies in the embryos to find out the good quality embryo, what we call as pre-implantation genetic testing. So all these facilities are available, and not only that, when it comes our surgeons, we are competent enough to perform endoscopic surgeries like hysteroscopies for polyps or, you know, fibroids, and laparoscopies to remove the fibroids, and to look at the tubal status. So all these are the support we provide to the patient, so that when they come with these problems, when we see if there is any additional thing, like, you know, if there are endometrial studies also they are being performed, and PRP, stem cell, you name it, we have all the procedures here. So that is what. So this is available under one roof. Oh, that's great. So everything is one roof. Yes. That's great. So, Dr. Aarti, people often say that IVF is only for those who are infertile. So, is IVF suggested only for infertility? Yeah, this is a very good question actually, because this concept of fertility preservation is not at all aware to everyone. See, generally IVF, I would say, it is done to couple who are planning for pregnancy for a year, and if pregnancy doesn't happen. So in what cases this can happen is when it comes to women regarding to the ovary, when there are some problem with ovulation or less number of eggs, or in the fallopian tubes, when there is a blockage of fallopian tubes, or there is a previous surgery, or some cases of tubal ligation also. And in conditions like severe endometriosis, fibroid uterus, or in male factor like less sperm count, no sperm count, or some motility or morphology disorders in the sperm, these are the clear indication of IVF, that is in vitro fertilization. But when it comes to fertility preservation, we can freeze the women's eggs for later use. So when this can be done is when somebody who is 35 years old, generally we recommend women to go for, I would say nowadays 30 years old, more than somebody who's more than 30 years old, they can just go for a simple testing, that is blood serum AMH level, that will exactly depict the egg reserve. So if the egg reserve is borderline, or if they plan to postpone their pregnancy, it might be because of some studies or because of their career, what they can do is they can go for oocyte freezing. The procedure is same, that is we give the injections, we harvest the eggs, and then it is frozen and kept for later use. But this is clearly helpful for even young adults. For few nowadays we see cancers. So in these cases also, before starting chemotherapy and radiation, this procedure can be done. And in fact for men also, sperm freezing can also be done before any of these procedures. Yes, yes. वेलकम डॉक्टर निधि सिरावत, अ रेनाउंड फर्टिलिटी एक्सपर्ट एट क्रिस्टा आईवीएफ, जो कि आज हमारे सारे सवालों के जवाब आईवीएफ से रिलेटेड जानकारी देंगे। हेलो डॉक्टर, आज आपके लाखों सवाल उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो भी इनफर्टिलिटी इशू को फेस कर रहे हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि उनके लिए आईवीएफ सही है या नहीं, आईवीएफ कराना चाहिए या नहीं। हाय निशा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम। जैसा कि आपने कहा कि लोगों को आईवीएफ के बारे में डाउट्स है, वो कहते हैं कि आईवीएफ सेफ प्रोसीजर नहीं है, तो मैं आप सबको और उन सब लोगों को बताना चाहूँगी आईवीएफ एक कम्प्लीटली सेफ प्रोसीजर है। तो पहले जानते हैं कि आईवीएफ होता क्या है। आईवीएफ में हम लोग जिन पेशेंट्स को आईवीएफ की ज़रूरत है, इसमें इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं। हम एक भ्रूण तैयार करते हैं। वो भ्रूण कैसे तैयार किया जाता है? सबसे पहले इंजेक्शंस पेशेंट को स्टार्ट होते हैं फ्रॉम सेकेंड डे ऑफ पीरियड्स। तो ये जो इंजेक्शंस है तकरीबन 10 से 12 दिन डेली इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, और साथ में अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग के द्वारा आपके एग्स रेडी किए जाते हैं।
जब आपके एग्स रेडी हो जाते हैं, इनको एनेस्थीसिया में विद अ नीडल प्रिक एग्स को बाहर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसे हम ओवम पिकअप बोलते हैं, जो एनेस्थीसिया में होता है, एंड इट इज कम्प्लीटली पेनलेस। जब ये एग्स बाहर निकाले जाते हैं, उसके बाद इसको लेबोरेटरी में स्पर्म से इक्सी द्वारा, जिसका मतलब है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन द्वारा, स्पर्म को एग्स के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद इन एम्ब्रियोज को इंक्यूबेटर्स में रखा जाता है और इनकी ग्रोथ डेली चेक होती है। जब ये आपके एम्ब्रियोज तैयार हो जाते हैं, उसके बाद इनको हम आप में ट्रांसफर कर देते हैं, एंड द रिजल्ट विल गेट टू नो आफ्टर 2 वीक्स, यानी 2 हफ्ते के बाद आफ्टर सक्सेसफुली इम्प्लांटिंग द एम्ब्रियो वी गेट टू नो द रिजल्ट। सो इट इज अ कम्प्लीटली सेफ प्रोसीजर एंड पेनलेस प्रोसीजर। सो रिसेंट न्यूज में अभी देखा गया है कि ईशा अंबानी ने ट्विंस कंसीव किया है थ्रू आईवीएफ। तो क्या ये सच है मैम कि आईवीएफ के थ्रू सिर्फ ट्विंस ही होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी एक आईवीएफ प्रेगनेंसी के लिए जा रहे हैं या जो एक आईवीएफ ट्रीटमेंट करा रहे हैं, हर किसी को ट्विन प्रेगनेंसी नहीं होती है। हम जब एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, यानी जब हम भ्रूण को ट्रांसफर करते हैं, हम एक बारी में 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफर करते हैं। उस केस में अगर दोनों एम्ब्रियोज एक साथ इम्प्लांट हो जाते हैं, जैसे हमने 2 डाले और दोनों एक समय पे आपका यूट्रस से अटैच हो जाते हैं, उन केसेस में एक ट्विन प्रेगनेंसी होती है। पर जरूरी नहीं कि दोनों एक साथ अटैच हो। अगर सिर्फ एक बेबी अटैच होता है, देन इट रिजल्ट्स इन सिंगल ट्विन प्रेगनेंसी ऑल्सो। सो ये बिल्कुल गलत है कि सारी आईवीएफ प्रेगनेंसीज ट्विन प्रेगनेंसी होती है। अगर मैं एक रेट की बात करूं, कि परसेंटेज की बात करूं कि कितना परसेंटेज, सो यस, द परसेंटेज कम्स अराउंड 40%। सो नॉट एवरी आईवीएफ प्रेगनेंसी इज ट्विन प्रेगनेंसी, उसमें सिंगल ट्विन प्रेगनेंसी भी बहुत कॉमन है। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन आंसर। सो पहला सवाल है मैम कि आईवीएफ किन पेशेंट्स को रिकमेंड किया जाता है? आईवीएफ हर पेशेंट के लिए नहीं है। अगर आपके फर्टिलिटी एक्सपर्ट ने आपकी इन्वेस्टिगेशन और हिस्ट्री के बाद में इनमें से कोई भी प्रॉब्लम बताई है, तो आपको आईवीएफ इंडिकेटेड है। जिसमें से सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो है आपकी ओवुलेशन के ऊपर। यदि आपने बहुत बार मेडिसिन खाई है, उसके बाद भी आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या आपका ओवुलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, या फिर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज है। एक्चुअली पॉलीसिस्टिक ओवरीज क्या होता है? मीन्स आपके एग्स बहुत सारे हैं, खुद से एक एग नहीं बन पाता है। तो फर्स्ट रीजन इज ओवुलेटरी और ओवरी से रिलेटेड। इसके साथ में एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी ओवरी में ब्लड वाली सिस्ट बन जाती है। तो उन कंडीशंस में क्या होता है, आपका एग प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हो पाता है, साथ में उसकी जो क्वालिटी है एग की थोड़ी सी डाउन रहती है। सो इन पेशेंट्स में भी आईवीएफ रिकमेंडेड होता है। उसके बाद आते हैं हम यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम में। यदि आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड है या कोई गांठ है, तो ये वाली चीज आप पहले करेक्ट कराइए, उसके बाद हम आईवीएफ की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होता है ट्यूब्स की, मींस फेलोपियन ट्यूब्स। यदि आपकी फेलोपियन ट्यूब्स कोई इन्फेक्शन द्वारा बंद हो गई है, मोस्ट कॉमन रीजन बीइंग ट्यूबरकुलोसिस, यानी अगर आपको फीमेल को अगर टीबी की हिस्ट्री है, तो सबसे पहले आपकी ट्यूब्स अफेक्ट होती है, उसकी फंक्शनिंग अफेक्ट होती है। उन केसेस में क्या होता है, आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती है। हो सकता है सिर्फ एक साइड की ब्लॉक हो या दोनों तरफ की ब्लॉक हो। उन केसेस में हम पेशेंट को आईवीएफ रिकमेंड करते हैं, बिकॉज आईवीएफ में हम ट्यूब्स को बाईपास करते हैं। देयर इज नो रोल ऑफ ट्यूब्स। तो हम एग से ओवरी से एग निकालते हैं और उसमें स्पर्म मिलाते हैं और हम बेबी बना के ट्यूब्स को बाईपास कर जाते हैं। एंड नेक्स्ट मोस्ट कॉमन रीजन जो अभी ज्यादा बढ़ गया है, दैट इज मेल फैक्टर, यानी मेल इनफर्टिलिटी। सबको लगता है कि स्पर्म काउंट सबका नॉर्मल रहता है, इट इज ओनली द फीमेल विच इज रिस्पॉन्सिबल, बट एक्चुअली स्पर्म इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। आजकल क्या है कि जो स्पर्म काउंट है, इवन मेल्स आते हैं, हस्बैंड्स जब उनका सीमेन टेस्ट कराते हैं, स्पर्म काउंट इज अफेक्टेड। तो कहीं ना कहीं अगर आपका स्पर्म लो है या उसकी मोटिलिटी कम है, तो दैट इज ऑल्सो वन कॉमन फैक्टर जो आपको आईवीएफ की तरफ लेके जाता है। तो आई थिंक ये मेजर फैक्टर्स हैं जिसके लिए हम आईवीएफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्लस एज इज ऑल्सो एन इशू, मोस्ट कॉमन। अगर आपकी एज 30 क्रॉस हो गई है, इफ यू आर मोर देन 35, तो आपका जो एग रिजर्व है दैट गोज डाउन। सो इन पेशेंट्स में हम आईवीएफ के लिए हम आगे बढ़ते हैं। और देखा गया है कि आजकल हार्मोन्स की प्रॉब्लम भी काफी लोगों में देखी गई है। एक्चुअली क्या है, अगर आपका कोई भी हार्मोन इम्बैलेंस है, या आपका कोई थायराइड वाला प्रॉब्लम है, आपको शुगर का प्रॉब्लम है, या ब्लड प्रेशर भी है, तो ये सब प्रॉब्लम भी आपको ना एक्यूमुलेट करके आपको आईवीएफ की तरफ लेके जाता है, बिकॉज दीज ऑल फैक्टर्स हैव सम कॉमन प्रॉब्लम व्हिच लीड्स टू द हार्मोनल इम्बैलेंस। यस, सो दिस इज वन मेजर फैक्टर। सो आईवीएफ से रिलेटेड एक बहुत बड़ा मिथ है
कि आईवीएफ सिर्फ फीमेल में ही प्रॉब्लम होती है तभी रिकमेंड किया जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग ये सोचते हैं कि फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल है, कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही तो कहीं ना कहीं सारी फीमेल की गलती है, बट आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मेल भी इक्वली उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। तो ओनली थिंग इज आपको आगे बढ़ के अपने टेस्ट कराने हैं, बिकॉज यू नो इवन सम हस्बैंड्स व्हेन दे कम वो विलिंग नहीं होते कि नहीं मेरा तो सीमन नॉर्मली आएगा, बट दैट इज नॉट ट्रू। आपको अपना सीमन एनालिसिस भी कराना है, बिकॉज यू नो इतना स्ट्रेस बढ़ गया है अभी, आपका वर्क का लोड बढ़ गया है। जो मेल्स है दे गो फॉर स्मोकिंग कर रहे हैं, या उनका वर्क लैपटॉप से रिलेटेड काम हो गया है, तो दैट जनरेट्स हीट। अगर आप लैपटॉप अपने थाइस पे रख के काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी जेनिटेलिया का टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है पहले सीमन काउंट नॉर्मल हो, पर बाद में अगर कम हो गया हो तो यस, मेल्स को भी अपना सीमन एनालिसिस कराना है, और अगर कुछ प्रॉब्लम निकलती है तो हमें उसकी तरफ जाके उसको पहले ट्रीट कराना बहुत जरूरी है। सो मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि आईवीएफ में सिर्फ फीमेल में ही प्रॉब्लम नहीं होती है, नहीं। मेल में भी प्रॉब्लम आती है। दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप बेबी भी हम एक एम्ब्रियो भी बना रहे हैं तो उसमें भी हम सीमेन का यूज कर रहे हैं, तो Right. यानी दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, और मेल का सीमन एनालिसिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके तो लोग तो ये भी कहते हैं कि आईवीएफ इज वेरी पेनफुल प्रोसीजर, कहते हैं कि एक नॉर्मल लेबर डिलीवरी से भी ज्यादा पेन होता है, तो क्या ये सच है कि आईवीएफ कराने में इतना दर्द होता है? नहीं, मुझे पता नहीं कहाँ से सुना है कि आईवीएफ में इतना पेन होता है। आई थिंक दिस इज अ मिसकंसेप्शन, टोटली रॉन्ग। आईवीएफ में सिर्फ आपको इंजेक्शंस लगते हैं, वो भी बहुत ही पतली, वेरी फाइन निडल, जैसे इंसुलिन वाली निडल होती है उससे इंजेक्शंस लगते हैं आपको तकरीबन 10 से 12 दिन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और जो एग पिकअप वाला प्रोसीजर होता है वो तो एनेस्थीसिया में होता है, तो पेन कहाँ पे है? पेन तो है ही नहीं इसमें। पेशेंट को मैं अगर एग पिकअप के लिए लेती भी हूँ तो उसे कुछ पता नहीं चलता, देयर इज नो पेन। पिकअप के बाद पेशेंट मेरे से बोलती है मेरा एग पिकअप हो गया, तो मतलब उसे पता ही नहीं चलता कब एग पिकअप हो गया। सो आई थिंक दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। सो आईवीएफ इज नॉट अ पेनफुल प्रोसीजर, इट्स कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि आईवीएफ इज अ नॉर्मल प्रोसीजर, वेरी नॉर्मल, एंड आई थिंक वी शुड नॉर्मलाइज आईवीएफ नाउ। इतना बड़ा टैबू नहीं बनाना चाहिए कि हम आईवीएफ की तरफ जा रहे हैं, इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। ओके सो मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज की स्टोरीज एंड पेशेंट्स के रिव्यू में ये पढ़ा है कि आईवीएफ एक टाइम बाउंड प्रोसीजर है और टाइम लिमिटेड प्रोसीजर है कि एक ही बार ही कराया जा सकता है, और आईवीएफ कितनी बार करा सकते हैं? सी आईवीएफ का कोई वो नहीं है कि आपको बस 2 साइकिल कराना है, आपको 3 साइकिल कराना है। इट डिपेंड्स कि आपका फर्स्ट साइकिल में आपके कितने एग्स निकलते हैं, आपके कितने एग्स रिट्रीव होते हैं। अगर आपके एग्स खूब सारे रिट्रीव होते हैं यानी हमारे पास एम्ब्रियो ज्यादा बनने के चांसेस हैं, एंड इफ यू हैव मोर एम्ब्रियोज तो आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर में एंड द फर्स्ट को मैं सिर्फ 2 ट्रांसफर करते हैं एम्ब्रियोज, यानी जो आईवीएफ के दौरान सिर्फ 2 एम्ब्रियोज हम ट्रांसफर करते हैं, बाकी एम्ब्रियोज हम टेस्ट ट्यूब बेबी। एग्जैक्टली, तो हम बाकी एम्ब्रियोज तो आपके फ्रीज करा के रखते हैं। अगर आपके फ्रोजन एम्ब्रियोज रखे हुए हैं तो रिपीटेड आईवीएफ की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपका एग रिजर्व ही कम है, यानी अगर आपका एएमएच कम है, मेरे पास आपके लिमिटेड एग्स हैं, यस, देन आपको एक साइकिल अगर उसमें कम निकलते देन वी एडवाइज फॉर पूलिंग, कि हम एक और साइकिल आईवीएफ कराएंगे और सारे एग्स को पूल करके भी सेलेक्ट द बेस्ट, उसमें से सबसे अच्छे वाला हम एम्ब्रियो सेलेक्ट करते हैं। और इसमें कोई नंबर नहीं है, जैसे किसी ने एक आईवीएफ साइकिल कराया, मैंने उसका एम्ब्रियो ट्रांसफर करा दिया, अच्छा उसकी प्रेगनेंसी हो गई, अब आगे चल के वो फिर से आईवीएफ चाहती है तो इसमें कोई मना नहीं है, तो दोबारा उसको इंजेक्शन लगाएंगे, दोबारा एग रिट्रीव करेंगे, फिर से बेबीज बनाएंगे और फिर से ट्रांसफर करेंगे। Okay. Thank you, doctor, for very informative Thank you so information for much. IVF. Yeah. Thank you so much. I hope आपकी information काफी सारे लोगों को help करेगी. And it is very nowadays it's very clear that IVF is very safe procedure and not a painful procedure. So if anyone can required for IVF, they can come and get the consultation from us. Thank you. So I think आपकी सारी queries solve हुई होंगी. Yes. I think बहुत एक insight मिला होगा because there are so many myths about IVF. बहुत सारी गलत फहमियाँ भी हैं IVF को लेके. So I hope this session was of any help for you. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you.